Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of you who start a preparation start doing mock tests. And we all know that we don't get really good score at the starting point in our preparation in the mock test, and we're quite concerned about it. Also, one very important thing that a lot of mentors, and in fact every mentor would tell you, is you should analyze your current affairs really properly. Now the question is, why do we need to analyze our mock test as a boring exercise? है ना? And अगर करना भी है, so how do we analyze our mock test? So in this particular session, I'm going to be telling you the how and why of analyzing the mock test. Okay? Let's first come to as to why do we need to analyze our mock test? कितना boring है? 2 घंटे mock test दो, थोड़ा सा break लो, and then spend another 2.5 hours just analyzing it. See, you have to understand that why do we do mock test at all? Why? Because we need to understand as to what are the kind of problems we have, what are the kind of mistakes we make, right? So if we don't understand the kind of mistakes we make, we will never be able to improve on those mistakes. So this is the first reason as to why mock test analyzing is extremely important. There is no point of doing a mock test अगर आप उसको analyze नहीं कर रहे हो, right? Second very important thing is sometimes we are not too sure as to what is our weak section, and sometimes we like a section but we're not able to do too well in that particular section. So this analyzing also, you could say, helps us understand as to what are the sections that we generally are not very good in, and what are the sections where we are able to do reasonably well. तो आपको एक खुद से एक अंडरस्टैंडिंग होगी, you will be more aware about the preparation for analyzing your mock really well, right? Third very important point is when you analyze your mock, you can always refer it in the future mock. For example, if you do certain mock, let's say in the month of February, जुलाई में आप भूल जाओगे आपने फरवरी में क्या किया था, बट यू विल ऑलवेज हैव अ नोटबुक रेडी, जिसकी बात मैं लेटर इन द सेशन भी करूंगा कि क्या आपको किस तरह की नोटबुक बनानी चाहिए फॉर मॉक टेस्ट. तो वो नोटबुक को आप रेफर कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस है, किस चीज में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, व्हाट पॉइंट्स शैल यू फोकस ऑन, सो दैट विल मेक इट इवन इजियर फॉर यू टू इंप्रूव. सी, मॉक टेस्ट आर टू मेक मिस्टेक्स, but every time let's make a new mistake, right? Why to repeat those mistakes that we had made earlier? So that is why analyzing is very important. Now, how do we analyze a mock test? See, let's take an example. We have 120 questions in our CLAT mock test. Out of 120 questions, you attempted 80 questions and you did not attempt 40 questions, right? Let's first come to those 80 questions. Out of these 80 questions, let's say 50 questions are correct and 30 questions are incorrect, right? अब आउट ऑफ दिस 50 to 30 वाला जो रेशियो है, यू वुड फील कि 50 तो सही है तो इनको तो देखना नहीं है, 30 को देखते हैं क्यों गलत है. नो, वी विल स्टार्ट विद दोस 50. व्हाई वुड वी स्टार्ट दोस 50? वो तो सही है. तो कभी कभी क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ टाइम वी मेक सर्टेन फ्लूक्स, है ना. आवर रीजनिंग में नॉट बी द रीजनिंग दैट्स गिवन इन द आंसर, कि हमने तुक्का लगा दिया सही हो गया. तो आपको वो भी रीजनिंग जानना जरूरी है. सो द फर्स्ट 50 क्वेश्चन दैट यू हैव डन करेक्टली विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट यू हैव टू एनालाइज दैट, राइट? Then we move on to the most important part, which is why did we make those 30 questions incorrect? Okay, very important to understand. You need to analyze the same day you do your mock test. So let's say if you're doing a mock test from 2 p.m. to 4 p.m., you can take a break of 1 hour, 2 hours, but please analyze it on the same day. Because why am I saying this? जो वो 30 questions का आप एनालाइजेशन करोगे ना, अगर आप उसको अगले दिन करोगे और 2-4 दिन बाद करोगे और उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, you will forget as to what was going in your mind when you were doing that particular question, right? Let's say आपने 30 questions जो आपकी गलत हुए उसमें से एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, उसका आंसर आइडियली ए होना चाहिए था, बट आपने उसको लेट्स से सी मार्क कर दिया, राइट? तो अब आंसर की में रीजनिंग दे रखी है ना कि सी क्यों आंसर नहीं है और ए क्यों आंसर है, राइट? तो जब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होगी as to why did you mark C, what was wrong with your approach while you were reading that particular passage or that question, you will be able to make, you could say, those rectification of those errors very quickly, right? तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे. इसे प्लीज सेम डे पर करना, राइट? तो ऐसे ही हम सारे 30 क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे. वी विल आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी हैव बीन मेकिंग, एंड देन वी विल ट्राई एंड फिगर आउट कि अच्छा अगली बार से ये चीज अवॉइड करनी है कि मैंने वर्ड मिस कर दिया, मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने जल्दी में पढ़ लिया, राइट? दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स. वी डोंट रीड द पैसेजेस केयरफुली समटाइम्स. कभी क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ते, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, ए पहले ही से लग गया तो उसको मार्क कर दिया, सीधे पहुंचा ही नहीं, राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, देन फॉर द 40 क्वेश्चंस क्या करें जो हमने छोड़ दिए थे. अब क्वेश्चन छोड़ने के 2 रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज आपको आए नहीं, सेकंड इज यू डिड नॉट हैव द टाइम टू कंप्लीट, राइट? सो लेट्स से आउट ऑफ दोस 40 क्वेश्चंस you were not able to do 10 questions. आपने देख लिए थे, आपको नहीं आए, राइट? बट 30 क्वेश्चंस तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा करने का. तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हम 2 घंटे में आउट ऑफ 120 90 क्वेश्चंस देख पाते, जिसमें से हमने 80 अटेम्प्ट भी किए, 10 हमें आए नहीं, ठीक है? बाकी के 30 क्वेश्चन क्या करें, हमारी स्पीड इसका मतलब स्लो है,
तो इसके लिए वी विल आइडेंटिफाई अ टाइम फ्रेम फॉर ईच सेक्शन। ये कैसे करते हैं? You can take 28 minutes each or 27, basically 55 minutes for English as well as logical reasoning. ठीक है, इन दोनों को मिला के 55 मिनट्स में खत्म करो। Take 15 minutes for current affairs. ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। You can take the next 40 minutes for legal reasoning. ठीक है, और लास्ट के जो 10 मिनट्स बचेंगे वो आप मैथ्स के लिए ले सकते हो। तो समय पीरियड से मैथ्स 10 मिनट्स में नहीं होता, तो फिर वो टाइम आपको करंट अफेयर से 5 मिनट माइनस करने पड़ेंगे या फिर लीगल से माइनस करने पड़ेंगे। तो जो भी आपका सेक्शन ज्यादा सॉर्टेड आपको लगता है ना, आप वहां पर थोड़ा सा माइनस कर सकते हो। इतना एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ये एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है जो आपको फॉलो करना रहता है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आई डोंट वांट टू गिव दिस पर्टिकुलर सेक्शन मोर टाइम देन दिस, है ना। इट इज आवर फॉल्ट अगर हम किसी सेक्शन को लेट्स से हमने 25 मिनट डेजिग्नेट किए हैं और हम उसको 30 मिनट दे रहे हैं, 32 मिनट दे रहे हैं, वो 5-7 मिनट आगे कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा फिर, राइट। तो उस तरह से शुरू से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, एंड में जाना बहुत आसान है, ठीक है। तो द लास्ट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर सेशन व्हिच आई वांट टू रेज इज you also need to create a mock notebook, a separate mock notebook। एक पतली सी नोटबुक ले लेना, उसको एक mock notebook बनाओ। Why am I saying this? उसमें आप एक तो अपनी गलतियां लिखो कि मेरे को किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स, कौन से सेक्शन मेरे खराब है। उन पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि कौन से टॉपिक्स खराब है तो और भी अच्छी बात है, उसको लिखो। एंड जस्ट राइट लेट्स से अ 50 to 60 to 100 वर्ड का एक छोटा सा पैराग्राफ ऑन हाउ डिड यू फील अबाउट दिस मॉक। ठीक है भाई, क्यों लिखना है, ये क्या बकवास है, राइट? क्यों लिखना है ये? सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस वाले एक मॉक के लिए लिखा जो मैंने दिया था, मैंने पूरा 120 मिनट्स आई कॉन्सेंट्रेट और बी वेरी ट्रू अबाउट इट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हम 1 घंटे के बाद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, राइट दैट, ओके। लेट्स से आई राइट कि आई डिड द मॉक रियली वेल फॉर 60 मिनट्स, माय स्पीड वाज आल्सो फाइन, बट आफ्टर 60 मिनट्स मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया, फेल्ट लाइक स्लीपिंग स्लाइटली। I was not able to concentrate for full 2 hours, and that is why I did not do 30 questions. I was only able to see 90 questions. Otherwise, I think if I'm able to concentrate for 2 hours at this stage, I can see around 105 questions. Okay, but I still need to work on those extra 50 to 20 questions, for which I need to manage my time really, really better. So and so sections I felt were slightly difficult in this mock, and so sections I think are my strong points. So and so sections I think are my weak points, right? अभी छोटी सी चीज लिखी है हमने, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी चीज लिखी है, हर मॉक में हम लिखते गए। तो जब आप मॉक 1-2 कर रहे होगे ना, और जब आप ये चीज लिखोगे, और जब आप लेट्स से मॉक 20 कर रहे होगे ना, उस टाइम ये रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। आपको खुद अपनी जर्नी के बारे में बहुत समझ में आएगा कि हाउ आर यू इम्प्रूविंग। इम्प्रूव करोगे ही करोगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो वहीं रह जाता है, वो सिर्फ वही होता है जो फिर महीने में 1 बार या 4 बार किताबें उठा रहे हैं, नहीं, है ना। वो तो हम नहीं करेंगे, वी नो वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली, राइट। तो अगर आप ये चीजें लिखते चले जाओगे, इट विल ओनली टेक एक्स्ट्रा 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, बट इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। And for any kind of strategic, conceptual guidance, mock test, sectional test, BPPs, brainstorming, editorials and everything, you can join our latest batch which is Udaan and Udaan Plus. आप उसका पार्ट बन सकते हो। Very affordable and reliable batches with the top results that we have done for CLAT 2025. We're going to in fact do even better in CLAT 2026. So we're going to be guiding you with respect to literally everything. We also have something called the Shakuntala Scholarship that gives you 100% refund of your fees if you get an all-India rank under 300 in the जनरल कैटेगरी, ठीक है। इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो आप फॉर एनी क्वेरी दैट यू हैव। यू कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट व्हिच इज 12minutes2clat.com, download our app from Play Store as well as App Store, and we'll be very very happy to guide you with the top quality educators. And ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। आपका 80% ऑफ द पेपर जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, the educators are themselves from top NLUs. So it's not just that कि वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे या स्ट्रैटेजिक चीजें बताएंगे, वो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस बताएंगे जो आप बहुत रिलेट करोगे उन चीजों से कि यार ये हो रहा है हमारे साथ। बिकॉज मैंने क्लैट की प्रिपरेशन की थी तो मुझे पता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट में हमेशा प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे कई बार अप्रोच में प्रॉब्लम आती है, मुझे सेल्फ डाउट है बहुत ज्यादा, है ना। मैं कुछ चीजें किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, तो वी अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट। So those things would also be really, really sorted. You have access to doubt tabs, you have access to live polls in the live classes, you have all the recordings available. So this is going to make your life very, very easy and very, very simple. And be ready, and you're destined to go to a top NLU. It is people like you who do that every year. With the right kind of mentorship, we are going to make it even more possible. All the best, guys. I'll see you in my classes. Keep working hard, keep smiling, and don't forget to analyze your marks. All the best.